ہم سب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا ایک پلان ہے. یسوع مسیح بغیر پلان کے آسمان سے نیچے نہیں آیا. وہ ایک پلان کے تحت زمین پر آیا ہے اور وہ سب کاموں کو وقت پر کرتا رہا ہے. سب کاموں کو اس نے وقت پر کیا ہے, ٹائم پر کیا ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے اپنے باپ کے کام کو دن ہی دن کو کرنا ہے, اور وہ سب کاموں کو کرتا تھا. شاید ہم اپنے کاموں میں شاید جو ہے وہ سستی کریں یا پہلی ہماری زندگیوں کے اندر ہو, لیکن یسوع مسیح ایسا نہیں چاہتا. اور اب وہ بھی چاہتا ہے اس کے سارے ممسوح, اس کے سارے خادم, اس کی کلیسیا, اس کے لوگ جو ہے وہ بھی روح اور سچائی سے خدا کے کاموں کو سیکھیں, کریں, اور اس کو کرنے کے بعد یقینی طور پر انہیں برکت ملے گی. ہاللیلویہ. تو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ عبادت میں بیٹھ کر جب ہم عبادت نہیں کرتے تو پھر سوچ لو کہ ہم کرتے کیا ہے. عبادت میں بیٹھ کر جب ہم عبادت نہیں کرتے تو ہم اس کلام کو قبول نہیں کرتے جو خروج کی کتاب کے اندر سے خداوند نے فرمایا تھا کہ جب تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دوں گا. ہاللیلویہ. پھر کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہمارا عبادت کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے, سٹائل درست نہیں ہے, اور اس وجوہات سے ہم چرچ میں تو ہوتے ہیں, کلیسیا میں تو ہوتے ہیں, لیکن کلیسیا میں جو کچھ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت میں بیٹھنے کی وجہ سے, جانے کی وجہ سے اور حاضری کی وجہ سے ہم وہ نہیں کرتے. یہ ہماری ناکامی کی وجوہات ہے. کسی پاسٹر میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کسی پاسٹر میں کوئی کمی ہو کہ وہ دعا کرے اور وہ نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کبھی, کیونکہ جو بھی ممسوح دعا کرتا ہے اور وہ کسی مقصد کے لیے دعا کرتا ہے وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے. لیکن ریسیو کرنے والے کے خیال اور سوچ کیا ہے, وہ کس طرح سوچتا ہے. اگر وہ ایمان لائے کہ اگر آج آپ میرے لیے دعا کریں گے تو پھر آج ہی یسوع معجزہ کر دے گا. آج ہی معجزہ ہو جائے گا. پھر آج ہماری زندگی کے اندر یسوع کام کرے گا. وہ کل نہیں کرتا, وہ کسی اور وقت میں نہیں کرتا. دیکھیں گے پھر کسی وقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لائیں اور اس سے مانگیں تو اس کا وعدہ ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں مانگنے کی کمی ہے, مجھ میں مانگنے کی کمزوری ہے, اس وجہ سے وہ سب کچھ نہیں ہوتا. لیکن آج میں 2-3 پوائنٹس کی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو ہم سب کے بلیسنگ کے لیے ہے, برکت کے لیے ہے. ہمیں کسی اور طرف نہیں جانا, کسی کو اس بات کو نہیں سوچنا, نہیں غور کرنا. آئیے میرے ساتھ لکھا لیں, آئیے متی کی انجیل میرے ساتھ لکھا لیں. آج ہم سیکھیں گے کلیسیا کے بارے میں, کسی پوائنٹ میں کلیسیا کے بارے میں. پھر ہم دیکھیں گے کہ کلیسیا کا بنانے کا اختیار جو خدا نے لوگوں خادموں کو ممسوح کو دیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں گے اور غور کریں گے کہ کیا لکھا ہے. میرے ساتھ نکالیے گا. 16 باب ہے متی کی انجیل, اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت سے خدا کے کلام کو آج ہم سیکھیں گے. اس میں کیا لکھا ہے اور اس پہ غور کریں گے اور ہم ضرور برکت پائیں گے خدا سے. اور خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اور ہم اس سے برکت آج پائیں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویہ. ہم برکت پائیں گے. کہو ہم برکت پائیں گے. ہم برکت پائیں گے. ہاللیلویہ. مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اور اس مقصد کو ہم لے کر جائیں گے, اس مقصد کو پورا کریں گے آج یسوع مسیح کے نام میں. تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر بڑا خوبصورت کلام میں لکھا ہے اور آج ہم اس پر غور کریں گے. کیا لکھا ہے 13ویں آیت کے اندر؟ غور کیجئے گا. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. کیا کہا یسوع نے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. سوال کا جواب کیا دیا گیا؟ آگے سے یہ کہا گیا, انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں اور بعض ایلیا اور بعض یرمیا اور نبیوں میں سے کوئی. یہ سوال کا جواب دیا گیا کہ دنیا کے اندر اس طرح کی رائے ہے. دنیا کے اندر یسوع مسیح کے متعلق یہ رائے ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو یہ سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے ایک سوال ان سے پھر دوسرا کیا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو, تم مجھے کیا سمجھتے ہو, تم مجھے کیا کہتے ہو, تم نے کتنا اسٹڈی کیا مجھے, تم لوگوں نے کتنا مجھے جانا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلیسیا میں ہوتے ہیں, مسیحی ہوتے ہیں, لیکن یسوع مسیح کو اتنا نہیں جانتے.
क्योंकि हमने कोशिश कभी नहीं की कि हम यीशु मसीह को जाने या यीशु मसीह को समझें या यीशु मसीह को अंडरस्टैंड करें कि यीशु क्या है, वो क्या कर सकता है, वो कैसा है, वो किस तरह का है, उसके पास इख्तियार क्या है, उसके पास कुदरत क्या है, उसका जाहो जलाल कितना बड़ा है और मैं क्या कर ले सकता हूँ, क्या कुछ पा सकता हूँ। इसकी स्टडी हम नहीं करते, इसका मुताले हम नहीं करते। सिर्फ चर्च में बैठकर भी हम जिस्मानी चीजें सोचते रहते हैं। चर्च में बैठकर, कलीसिया में बैठकर भी हम जिस्मानी बातों के ख्यालों में रहते हैं। मैं फलानी जगह पे जाना है, आज चालिया है, आज फलाना है, आज ऐसे है, आज वैसे है, आज मुझे फला जाना है, तैयार से काफी हो गया है, होते होते ऐसा हो गया होना है, कि वो इंज हो गया होना है, पादरी कितने जान छड़ दे जल्दी ना। हम इन चीजों को अपने ज़हन के अंदर इसी तरह की चीजों को रखते हैं, चलाते हैं, वो चलती रहती है हमारे ज़हनों के अंदर, और ये हमारी नाकामी का सबब होता है। हम जितना वक्त मसीह यीशु में इबादत में बैठे और हमारी तवज्जो का मरकज अगर यीशु मसीह हो तो मेरा ईमान है कि उसी इबादत के अंदर यीशु उतर आएगा। लेकिन हम ये करते नहीं है, हम ये करते नहीं है। ये हमारे अंदर ये नाकामी है, कमजोरी हमारे अंदर ये है कि हम वो नहीं करते जो कुछ यीशु मसीह चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्वेश्चन करके उनसे ये सवाल पूछा और उनसे कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो, क्या कहते हो मेरे बारे में, तुम्हें कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी तुम्हें ये सब बातों का मालूमात है मेरे बारे में। उसने 15वीं आयत के अंदर ये पूछा उनसे, उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, जो हर वक्त जवाब देने में बड़ा सरगर्म रहता था, वो यीशु कोई भी क्वेश्चन करता, कोई भी सवाल करता, लेकिन झट से वो जो है जवाब देने की कोशिश करता। लेकिन वो मसीह में मगन भी था, वो मसीह में सरगर्म भी था, वो मसीह में सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा संजीदा था। दूसरे शागिर्दों की निस्बत वो सबसे ज्यादा एक्टिव था और वो यीशु की बात को ध्यान से सुनता था। ये भी एक बात गौरतलब है कि कभी कभी हम खादम की बात को गौर से सुनते नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है। अच्छा स्टूडेंट वो ही होता है और वो क्लास में बहुत बेहतरीन उसके नंबर होते हैं और बेहतरीन उसके मार्क्स होते हैं और वो पोजीशन लेता है जो अपने उस्ताद को गौर से देखता है, ध्यान से उसकी बात सुनता है। इसने क्वेश्चन क्या दिया है, इसने क्या बोला है, इसने किस तरह बोला है, अल्फाज क्या कहा है, वो तवज्जो देता है। स्टूडेंट, वो शागिर्द जो है तवज्जो देता है। उनमें से एक पतरस था जो बड़ी तवज्जो देता था यीशु की बात की, यीशु की बात को ध्यान से सुनता था, बड़ी तवज्जो से सुनता था। लेकिन यीशु मसीह ने जब ये सवाल किया तो यीशु मसीह को आगे से उसने 15वीं आयत में क्या कहा, जब ये पूछा गया 15वीं आयत में, तो आगे बड़ा खूबसूरत लिखा है, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लोग तुझे बेशक कुछ भी कहते हो, लेकिन मैंने जो तुझे स्टडी किया है तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मैं तुझे ये जान गया हूं, मैं तुझे ये समझ गया हूं कि जो तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उस जमाने में, उस वक्त में जो खुदा के मंसू है वो मुझसे ज्यादा बेहतर भी जानते हैं, बेहतर भी स्टडी उनकी होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मसीह कहना उस वक्त बहुत बड़ा जुर्म था। यीशु मसीह को मसीह कहना, यीशु कहें मुश्किल नहीं है, लेकिन मसीह नाम लेकर उसको पुकारा नहीं जाता था। हालांकि वो मसीह था, लेकिन मसीह यहूदी उसको नहीं कहने देते थे। कोई ये इकरार ना करे कि वो मसीह है, ये बड़ा जुर्म था। अगर तू कहेगा तो उसको सजा, बहुत ज्यादा बड़ी सजा मिल सकती है। क्यों तूने उसको मसीह बोला है? मेरी बहनों बेटियों, इनको समझो इस बात को। और इसने फिलिप्पी जो कैसरिया फिलिप्पी है, ये गलील की झील से शिमाल की तरफ 40 किलोमीटर के फासला पर एक गांव था। उस इलाका से यीशु आगे नहीं खिदमत में गया, उसे फिर वापस आ जाता है। वो वहां से आगे नहीं गया यीशु खिदमत के वक्त में। और मैं आपको उसको बताता चलूं, और उसने क्या किया, जब ये पूछा तो ये फौरी तौर पर यीशु मसीह ने एक सवाल बड़ी जल्दी से उसको ये बात कह दी। जब उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो जल्दी करके एक और खुलासा यीशु मसीह ने उस पर खोल दिया। और यीशु मसीह ने समझा कि तू ठीक समझा है। उसने सवाल का जवाब भी दिया। मैं इसको पढ़ता हूं ताकि आपको ठीक तरह से इसकी समझ आ जाए। क्या लिखा है 17वीं आयत के अंदर, क्या लिखा है?
17वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। कि तेरे ज़हन के अंदर ये बात है, तू बिलीव करे, तू ईमान ले, ईमान रखे कि मैं जो कुछ हूँ तू मुझे जान जाए, तू मुझे समझ जाए। ये बात खून और गोश्त ने नहीं कही, ये मेरे बाप ने तुझ पर मकाशफा खोला है, और इस मकाशफे की वजह से तूने ये बयान किया है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जब तक इंसान के अंदर रूह कुदस ना हो, वो किसी चीज को समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। जब तक वो बाप उस पर ज़ाहिर न करे, रूह कुदस उस पर ज़ाहिर न करे, खुदा उस पर ज़ाहिर न करे, कुछ समझ नहीं सकता। यीशु मसीह जब तक ज़ाहिर न करे, कुछ समझ नहीं सकता किसी चीज को। ये समझने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? खुदा की इबादत करनी पड़ती है रूह और सच्चाई से। जब हम इबादत में बैठे तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को वाच करना शुरू करें और ख्वाहिश करें कि यीशु मैं इसी इबादत में तुझे देखना चाहता हूँ। आज यीशु मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, आज मैं तुझे यीशु मिलना चाहता हूँ, आज तू मुझे जरूर मिलेगा, तो आज मुझे जरूर आकर मुझे छुएगा और मैं तू छुएगा और मैं बरकत पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी हमारी सोच होनी चाहिए। इबादत में बैठकर हमें ऐसे ख्याल सोचने चाहिए, ऐसी बातें हमें हमारे ज़हन के अंदर आनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ऐसी कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बन जाती है जिस पर आलम रुआ के दरवाजे जो हैं वो कभी गालिब नहीं आ सकते, बल्कि वो लोग जो होते हैं वो जमीनी से आसमानी बन जाते हैं। यहाँ तो इस तरह बनाए जाते हैं लोग। जब रूह कुदस के जरिए से आप खुदा के कलाम को सीखेंगे तो यहाँ पर ये मैसेज में हमें मिलता भी है। इसी बात को आगे चलकर आप स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या लिखा है। जब ये बातें उसने कही तो उसने जब ये कहा कि ये बात खून और गोश्त ने नहीं कही बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है, तो आगे क्या लिखा है, और मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया। समझे आप इस बात को? क्या मतलब इस बात का? जो लोग आलमे रुआ में उतर जाते हैं वो अज़ाब में उतर जाते हैं, वो मुसीबत को उठाएंगे, वो दुख उठाएंगे, वो रोएंगे, वो चलाएंगे, वो आंसू बहाएंगे, वो कहेंगे ए बाप अब्राहम मुझे इस मुसीबत से निकाल, क्योंकि वो आलमे रुआ में उतरा था वो दौलतमंद। इसलिए वो मिन्नत कर रहा था उसकी कि मुझे यहाँ से अजाब में कोई नाज़र को भेज, एक अपनी उंगली भुगो कर मेरी जबान पर लगा दे। वो इतना मुश्किल में था आलमे रुआ में उतरने की वजह से। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात करता है, और ये बात बड़ी कलीसिया के लिए, लोगों के सीखने के लिए होती है कि यीशु मसीह हम सबको इसी तरह की कलीसिया के अंदर रखना चाहता है जिस पर आलमे रुआ के दरवाजे कभी भी गालिब ना आ सके, बल्कि वो जमीनी से आसमानी हो, उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की ब्लेसिंग हो, उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की बरकत हो। खुदा यीशु मसीह कलीसिया को बनाना चाहता है। वो इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो पत्थर कौन है? पत्थर यीशु मसीह है। वो कहता है कि मैं पत्थर हूँ, तू पत्थर से है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि जो उस पत्थर पर कलीसिया बनती है वही कलीसिया आसमानी कलीसिया होती है। जो इस पत्थर पर कलीसिया नहीं बनाई जाती वो कभी आसमानी नहीं हो सकती। वो किसी बिशप की हो सकती है, वो किसी और बड़े किसी अदारे की हो सकती है, लेकिन यीशु की कलीसिया यीशु पर बनाई जाए तो यीशु मसीह पर बनाई हुई कलीसिया ही आलमे रुआ के दरवाजों पर वो उस पर गालिब नहीं आ सकते दरवाजे, बल्कि यीशु मसीह उन्हें सीधा फरदौस में ले जाता है। और उनके लिए ये असाज है, उनके लिए ये बरकत है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं हम सब की कमजोरी क्या है कि हम कलीसिया बनते ही नहीं है। हम कलीसिया बनने की कोशिश ही नहीं करते, कभी कलीसिया बनने की कोशिश नहीं करते। हम कभी क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने मफादात देखते हैं और कलीसिया नहीं बनते। लेकिन यीशु मसीह को सबसे ज्यादा फिक्र कलीसिया की है। कलीसिया के बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपनी दुल्हन भी उसको कहता है और बहुत सारे एहसास, बहुत सारे नाम देता है उनको, और वो ये टाइटल देकर उनको कहता है कि ये मेरा खानदान है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी दुल्हन है, और वो बहुत कुछ कहता है। क्योंकि वो जानता है कि कलीसिया जो है वो ही मेरे साथ आसमान पर होगी, क्योंकि जो कलीसिया नहीं है वो कभी भी आसमान पर नहीं जा सकती।
ये आप सोच लें और ये बात को ध्यान में रखें कि अगर मैं कलीसिया का हिस्सा नहीं हूं तो फिर इसका मतलब है कि मैं कश्ती से बाहर हूं, मैं कश्ती से अलग हूं, मैं कश्ती में नहीं हूं। कश्ती में वो लोग होते हैं जो कलीसिया में होते हैं, हालेलुया, और उनको कलीसिया की दर्द होती है। वो कलीसिया के अंदर कोई गुनाह में है, कोई बीमार है, कोई मुश्किलात में है, मुसीबत ज़्यादा है, और वो रात को भी घुटने टेक कर दुआ करते हैं। वो क्या करते हैं? रात को भी घुटने टेक कर दुआ करते हैं, खुदावन ये मेरे खानदान का हिस्सा है, वो मेरी बहन बीमार है, वो कमजोर है, वो इस तरह से है, ये फाइनेंशियली तौर पर किसी तरह से परेशान है, लेकिन यीशु तेरे खजाने और तेरे बैंक बहुत बड़े हैं। खुदा तू अगर खोल दे तो खुदा उसकी गुर्बत, परेशानियां, दुश्वारियां अभी से ही जा सकती है। खुदा तो तू सब कुछ करने में कादर है। इसका मतलब होता है कलीसिया, क्योंकि कलीसिया के अंदर खानदान, जब आपका खानदान है तो आपके खानदान के अंदर किसी तरह के किसी भी अफराद को कोई परेशानी हो तो खानदान परेशान नहीं होता। हेलो, खानदान परेशान होता है कि नहीं होता? बताओ मेरी बहनों भाई, क्यों होता है ना? तो क्यों होता है? क्योंकि वो समझते हैं कि ये हिस्सा है। तो कलीसिया जो है उसको भी यीशु मसीह कहता है मेरे बदन का हिस्सा है। हम कलीसिया में जब कायम हो जाते हैं तो हम यीशु मसीह का बदन बन जाते हैं। और मसीह का बदन, इसीलिए तो कहते हैं कि मसीह का बदन तरक्की पाए, मसीह का बदन आगे बढ़े। जब हम कलीसिया में नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? किस तरह हम आगे बढ़े? हमें ये वाच करना है कि कौन सा मेरा खादिम है जो हमारे लिए फिक्र से दुआ करता है, और दुआ करने के बाद वो सोचता है कि ऐ खुदाम यीशु, ये कलीसिया एक दिन आसमान पर जहां तेरी बादशाही है वहां पर ये सब लोग होंगे। हालेलुया। मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ इस बात पर। मेरी खिदमत करने का मतलब यही है, कुछ और नहीं है। मेरा खिदमत का कोई और मकसद नहीं है। खादमों का मकसद जो होता है खिदमत का, वो कोई और अपने प्लान नहीं होते, बल्कि वो खुदा के प्लान पर चलते हैं, वो खुदा के प्लान के मतलब सोचते हैं। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आई है? हालेलुया। हाथ उठा दो, पूरा हाथ उठा दो, कुछ नहीं होता। हालेलुया है तो कितने समझ आई बात की? खादमों का मतलब ये होता है, जो खादम है, जो आपका ममसू है, जिसके साथ आप काम करते हैं, जिसके साथ आप खिदमत करते हैं। आज तो दुनिया में बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि कुछ दिन हम किसी के साथ होते हैं, कुछ दिन किसी के साथ होते हैं। ये मुश्किलात है, ये परेशानी वाली बात है। अपने खादिम के साथ मुखलस होकर रहें। अपने खादिम के साथ मुखलस होकर आप चलेंगे तो वो रात के पैरों में भी आपके लिए दुआ करेगा। अगर आप संडे थे और संडे थे, एक संडे इधर एक संडे उधर, ऐसा करके जिस तरह खिदमत करेंगे तो कोई भी हमारे लिए दुआ नहीं करेगा। और ना हम किसी कलीसिया का हिस्सा है, और ना किसी खानदान का हिस्सा ना होंगे तो कितनी मुश्किल आएगी। किसी वक्त मुसीबत आए, खानदान होने का मतलब होता है कि मुसीबत आए तो मुझे पूरा यकीन होता है मैं अपने घर चला जाऊंगा, अपने कमरे में चला जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा। तो जब हम मसीह की कलीसिया होते हैं तो हम सब के लिए शेल्टर एक ही है, और हम उस वही छत के नीचे आ जाते हैं जो यीशु मसीह हाथ फैलाकर हमें अपने हाथ के नीचे रखता है, क्योंकि हम उसकी कलीसिया है, हम यीशु की कलीसिया है। यीशु हमें संभाल कर रखेगा। फिर आगे क्या लिखा है? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, पढ़ो जरा कोई भी इसको आगे से। अच्छा, फिर क्या कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने? मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। पहले उसने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पहला जो कलीसिया के लिए खुदा को फिक्र है, यीशु मसीह को जो फिक्र है, उसने पहली बात ये कही कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रुवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, बल्कि वो आलमे रुवा के दरवाजों से आसमान की तरफ जाएंगे। आलमे रुवा के दरवाजे तो उनके लिए होते हैं कि जिनको अंदर बंद कर दिया और वो बाहर नहीं आ सकते। वो उस मुसीबत में रहेंगे, वो उस आग में तड़पेंगे, वो उस अजाब में रहेंगे, क्योंकि वो आलमे रुवा के अंदर उतर गए हैं। और यीशु मसीह इसलिए कलीसिया बनाता है कि मैं ऐसी कलीसिया को तैयार करूं, ऐसी कलीसिया को बनाऊं जो जमीनी उस आलमे रुवा के लिए ना हो, बल्कि आसमान के लिए हो। जहां मेरे यीशु है मैं भी वहां रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो कलीसिया, ये वो लोग बनाना चाहता है। तो क्या लिखा आगे? आगे हमने सीखा है कि मैं क्या करूंगा? आसमान की कुंजियां, आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। किस लिए जी? और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा
वो आसमान पर बंधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आसमान पर खुल जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे ये इख्तियार दे दिया है। पतरस को इख्तियार मिला है। यीशु मसीह ने इख्तियार किसको दिया? बताओ जरा, मुझे नाम लेकर बताओ, मुझे किसको इख्तियार दिया है? पतरस को इख्तियार दिया है। लेकिन आज बहुत सारी डिनोमिनेशन हैं, लोग हैं, कुछ ऐसे पासवान हैं, वो पतरस के ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। वो तो पढ़े नहीं सी, उनकी पता सी, उन्हें तो ऐसे कर दिया, उसने तो वैसे कर दिया, इस तरह की स्टोरियां करते हैं। हम पिछले हफ्ते में एक इबादत में थे, मंगल की इबादत में, तो मैंने पास्टर से, वो पास्टर कलाम सुना रहा था, तो वो इस तरह की हूटिंग कर रहा था, यानी नबियों को इस तरह का मजाक उनका उड़ाता था या बात करता था। मुझे अफसोस, मेरा अंदर जल रहा था उस पे। मैंने कहा क्या कर रहा है ये शख्स? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता ही वो क्या कर रहा था? जब उसने दोबारा शागिर्दों को, अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ यीशु से पूछ के आओ कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। है पास्टर जी, ऐसे है ना? तो क्या कहा उसने? वो कहता है इन्होंने नहीं पता, जो बपतिस्मा लिया आसमान तो रूह उतरिया, तो वो सब कुछ तो बाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इन्हों की जरूरत थी दोबारा क्लियर करनी। वो उसका मजाक उड़ा रहा है, वो किस तरह की ऐसी बातें कर रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ उस पर। मैंने कहा शायद तू किसी अच्छे उस्ताद से सीखा नहीं है। जब तक हम अपने रसूलों की, जिनको यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है कि जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा, ये इख्तियार दिया उसको इख्तियार दिया कि मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे देता हूँ। उसकी इज्जत हमें भी करना है, हमें भी उसके मुताबिक उस बातों को सीखना है, जानना है। तो क्या लिखा है? हमने इस बात को सीखा है, हमने इस बात को सीखा है कि जो कुछ उसे इज्जत तो यीशु दे रहा है, हमने उसके मुताबिक उसकी रिस्पेक्ट करना है। मैं ये समझता हूँ कि जो खादम खुदा के नबियों की इज्जत नहीं करता और उनको इस तरह का मजाक बनाता है या इस तरह की चीजें करता है और खुद बड़ा उस्ताद बनता है, मैं ये समझता हूँ कि उसे कुछ किसी चीज की समझ नहीं है, उसे पता नहीं है। मैं ये समझता हूँ रसूल और नबी जो हैं, हम उनको तो वाच करके एक नमूना बनाकर चलते हैं कि ये खुदा के साथ चलता रहा है और देखो इसने कितने दुख उठाए हैं और आखिर में खुदा ने इसको कितना बड़ा अजाज दिया है, कितना सरफराज किया है। आसमान पर ये उसके साथ है। इस तरह की वो सारी बरकतें, ब्लेसिंगें होती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हम उन नबियों के पासक नहीं है, हम उन जैसे नहीं हो सकते कभी। अगर हम कोशिश करें खुदावंद के साथ चलते हुए हलीम बने, ताबेदारी करें, तो शायद उनकी तरह हो जाए। लेकिन हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बताऊं आपको कि पतरस को इख्तियार दिया गया कि जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इख्तियार पतरस को दिया गया है, ये पतरस के पास इख्तियार है और भी रसूल है उस वहां पर। लेकिन पतरस को क्यों ये खास तौर पर ये इख्तियार दिया गया है? क्योंकि पतरस जो है वो पाक रूह की हजूरी में एक्टिव है और वो अपने उस्ताद की और अपने मुनज्जी की बात को बड़े ध्यान से सुनता है। उसकी आंखें यीशु मसीह पर ऐसे लगी रहती हैं, उसके मुंह से जो अल्फाज निकलता है पतरस उसको रसूल करता है। पतरस ये समझता है कि ये वो खुदा का कलाम है, ये वो कलमा है जो यीशु ने बोल दिया है, वो ऐन उसी तरह से हो जाएगा। और यीशु मसीह ने ये खुलासा उस पर खोला। क्या लिखा आगे जी, पढ़िएगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। उसने कहा किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। लेकिन मैंने आज कहा था कि हम कलीसिया पे बात करेंगे आज। पतरस ने जब कलीसिया के बारे में उसका कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तू पतरस है, तो उसने क्या किया? उसने रसूलों के अमाल की किताब के मुताबिक दूसरे बाब में जब उसने पहले दिन अपना वाज शुरू किया, वो कोई बड़ा इस बारे में मशहूर नहीं था कि वो लेक्चरर है या कोई इस तरह का है। लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि जिस दिन उसके अंदर रूह कुदस आया, वो कोई लेक्चरर भी हो तो पतरस का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाक रूह की हजूरी में बात करने वाला शख्स है और वो पहचानने वाला शख्स है। वो तो इंसान के इरादे और उसके गुफ्तगू से, उसके चेहरे को देखकर वो उसको पहचान लेता है कि ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है और ये क्या कहना चाहता है। उसके पास ये नेमतें थी रूह कुदस की, और उस नेमतों की वजह से वो सब बातें जो है वो जानता था, अंदर की बातें जानता है। जैसे हननिया और सफीरा के बारे में आपने सुन रखा है कि कितनी लियाकत है उसके अंदर, कितना इख्तियार और वो सब कुछ बरकत पतरस के अंदर है कि हननिया और सफीरा दोनों उसकी बातों को सुनकर जवाब नहीं दे सकते। जब उनकी जिंदगी में झूठ आता है तो झूठ की वजह से वो दोनों मियां बीवी जो है वो मर जाते हैं। और वो उनको क्या कहता है, क्या तुमने एका कर रखा है खुदा के साथ, खुदा के रूह के साथ झूठ बोलने का तुमने एका कर रखा है? तुमने क्यों ऐसा किया है? तुम क्यों अपनी जिंदगी को इस तरह से मुसीबत में आपने डाला है? तो तुमने क्यों ऐसा किया है? सो आगे चलेंगे थोड़ा सा। और ये बातें उसने जब ये कही कि मैं आसमान जमीन की कुंजियां तुझे देता हूं, तो उसने क्या किया? पहले बास के अंदर जब उसने बात करना शुरू की, उसने क्या किया? उसने कलाम को लिया और उसने कलाम के वसीला से, जब लोगों का हजूम है, हजारों के हिसाब से लोग जो है वो पतरस से कलाम सुन रहे हैं, जब वो कलाम सुन रहे हैं तो पतरस ने जब शुरू किया उसने चाबी लगा दी। चाबी कौन सी लगा दी? खुदा के कलाम की चाबी लगा दी कि अब मैं खोलना चाहता हूं इनके दिलों को, इनके दिल जो है वो खुल जाए, इनके दिल खुल जाए। और इस वजह से उसने चाबी लगाई, और चाबी लगाई तो चाबी लगाने के बाद जब उसने बात किया तो उसी बात के अंदर लोगों ने कहा कि ए भाइयों हम क्या करें? उन्होंने कहा कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ और यीशु मसीह के नाम से तौबा करो अपने गुनाहों से, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया। 3000 लोगों ने क्या किया? 3000 लोगों ने क्या किया? उसी दिन बपतिस्मा लिया। जब उसको ये इख्तियार जो मिला था कि तू खोले, जिस चीज को जमीन पर खुलेगा वो खोलेगा, वो आसमान पर खुल जाएगी। ये उसके पास खुदा के कलाम का इख्तियार था कि वो बोलेगा, जो कुछ बोलेगा वो होता जाएगा, और वो होता गया। इसी तरह हुआ। और फिर क्या हुआ? सबसे पहले जब ये एक और खुलासा खुला कि इस तरह से हुआ कि जब रसूलों के अमाल की किताब उसके 11वें बाब को देखते हैं तो सारे उधर यरूशलेम के अंदर ये पता चला कि अंताकिया में एक नई कलीसिया बन गई है। तो पतरस और रसूल जो थे वो बहुत खुश थे और बहुत खुश थे। कलीसिया, कोई भी कलीसिया हो, वो छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलीसिया होनी चाहिए। वो कलीसिया इस तरह से होनी चाहिए जो मसीह की पैरोकार कलीसिया हो, जो मसीह पर चलने वाली कलीसिया हो, जो मसीह के मुताबिक कलीसिया बनाई जाए, जो मसीह के कलाम के मुताबिक कलीसिया तैयार की जाती है, वही हाल में रवाह के दरवाजों पर गालिब आते हैं और वही नजात पाते हैं। दूसरा कोई नहीं पा सकता, कभी हो नहीं सकता कभी, क्योंकि यीशु मसीह का यहाँ ये पैगाम है, यीशु मसीह का हुक्म है, और यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक कलीसिया, जो मसीह पर कलीसिया कायम होती है, मसीह पर कलीसिया बनती है, वही कलीसिया फिरदौस के अंदर होती है। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दी। खुदा यीशु मसीह हमेशा